Good morning, students. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. As you can see, picture on the screen. This is a painting. Its name is Krishna with Gopis. So today we are going to discuss about this painting. Okay, let us start. First of all, look at this picture very clearly. Krishna is standing in between the gopis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gopis are there. Background there are lots of trees. Okay, let's start. Krishna with Gopis is the title of the painting. The artist was Manaku, Manaku, Manaku. The period when that was made is 1730 AD, and the school is Basaholi School of Art, that is the sub school of Pahadi school. We also can it's a sub school of Rajput school, because it is from your first unit Rajasthani or Rajput miniature school. Medium is tempera as usual on paper. Size is given 20.5 into 37 centimeter. Courtesy the National Museum, New Delhi. Okay, let us start with the subject matter. This horizontal painting, it's a horizontal painting. देखिए इस तरीके से है. This horizontal painting is an illustration from the Geet Govinda series by Jayadev. एक सीरीज़ है, पोइट्री है. उस पोइट्री की सीरीज़ जिसका नाम है गीत गोविंद, उसमें से ये एक सीन लिया गया है और इस सीन को बड़ी खूबसूरती से किसने पेंट किया है? मनाकू जी ने. इट डील्स विथ द लीजेंड्स एंड द प्लेज ऑफ राधा एंड कृष्णा symbolize soul's devotion to God. इसमें आप देख रहे हैं कि एक प्ले है जिसमें राधा एंड कृष्णा वर देयर, सिम्बलाइज कर रहे हैं डिवोशन, भक्ति दिखा रही हैं गोपीज टू द गॉड. Description and color scheme of the painting. In this painting, 8 gopis are shown adoring Krishna. Blue-skinned Lord Krishna, the charmer, is in the center of the painting. बिल्कुल बीचों बीच है. Wearing a yellow loin cloth and fondly embarrassing 2 of the gopis. The one gopi is sitting on her knee. देख सकते हैं आप, पिक्चर में देखते रहिए, आपको चीज़ों बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा. ओके, शर्मिंदा, वो थोड़े से शर्मा रही है, एम्बैरेसिंग फील हो रही है उनको, गोपीज को. वन गोपी इज सिटिंग ऑन हर नीज एंड होल्डिंग Krishna, while the other one in front of her is kneeling and touching Krishna's feet. एक झुकी हुई हैं, एक फीट को टच कर रही हैं. One of the gopis is standing with folded hand. देख सकते हैं आप, हाथों को जोड़कर खड़ी है. Folded hands on the right could be Radha. Maybe she could be Radha. हम इतनी सारी गोपीज में कह नहीं सकते, बट मे बी. With her attendant holding a fan behind her. आप देख सकते हैं एक लेडी राइट साइड में है आपके, रेड कलर का उन्होंने नीचे लोअर घाघरा पहना हुआ है, चुन्नी भी रेड कलर की है और हाथों को उन्होंने फोल्ड किया हुआ है. पीछे उसके एक लेडी जो है वो फैन लेकर खड़ी है. मे बी शी इज राधा. ओके,
Two gopis are standing on the left talking to each other. The one on the farthest left is holding a chawri. देखिए आप, एक तो चौरी लेके खड़ी है सबसे लास्ट में और उसके साथ एक और खड़ी है, वो उससे बातें कर रही हैं. There is no competition to win Lord's attention. The only effort is to please him. Krishna's crown is elaborately designed with feathers at the top. जैसा मैंने आपके पहले की सभी पेंटिंग्स में बताया कि डिस्क्रिप्शन मीन्स आपको पेंटिंग में क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कौन कैसी पोजीशन में है, कौन से कलर्स में है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है. ओके. ऑल सिमिलर लुकिंग गोपीज आर डेक्ड विथ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स. सभी जो लगभग एक जैसी दिख रही हैं गोपी, सभी के ने अच्छे से ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है. ग्रीन बीटल wings case is studded in all of them and pearl strings are highlighted. This decorative and dramatic composition has figures clad in rich costumes of bright colors. देखिए ये जो डेकोरेटिव ड्रामेटिक कंपोजिशन है, ये पूरे सभी फिगर्स में दिख रहा है. इनमें कलर्स भी बहुत रिच तरीके से यूज़ किया गया है. ओके. तो इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स को लेकर भी ये बात हो रही है कि बहुत रिच कॉस्ट्यूम्स में इनको ब्राइट कलर्स के साथ दिखाया गया है. स्टाइलाइज्ड फेस हैव लार्ज बल्जिंग लोटस शेप आईज. आँखों को भी बड़े अच्छे तरीके से बताया, लोटस शेप्ड आईज. Prominent forehead with hairlines pushed back and nose in the same contour of the forehead line. Bodies are rather short, which shows the impact of folk style. Bodies थोड़ी छोटी हैं. सारे लेडीज़ के फोरहेड्स जो हैं वो prominent हैं, के हेयर लाइन्स भी क्लियरली दिख रहे हैं. ओके. इट मीन्स उनके फीचर्स, फेशियल फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. बॉडी शॉर्ट है तो वो एक इम्पैक्ट दे रहा है फोक स्टाइल्स का. हैंड्स एंड फीट ऑफ द गोपीज आर डेकोरेटेड इन रेड कलर लाइक द डांसर. डांसर्स क्या करते हैं, उनके फिंगर्स में रेड कलर्स लगाती है ना जब डांस करते वक्त. डिफरेंट मुद्राओं को दिखाने की कोशिश करती है. उनके उंगली फिंगर्स में और सेंटर ऑफ द पाम में एक रेड कलर्स लगाया जाता है. तो वो चीज़ ये बताई गई है. ओके. कलर्स आर ब्राइट एंड बोल्ड विथ लस्टर enamel like quality. In the foreground, we can see a small stretch of the Yamuna river. आप देख सकते हैं फोरग्राउंड में एक पतला सा स्ट्रेच खींचा हुआ यमुना रिवर को रिप्रेजेंट किया गया. दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आपको जी. A few small trees of the same height with different shape of leaves are drawn on the right. दिख रहा है राइट साइड में ऑलमोस्ट सेम साइज़ के लीव्स है ना, थोड़ा सा छोटा सा वो बनाया है ऑन राइट साइड में. द हॉरिजन लाइन इज बियॉन्ड द हेड ऑफ द टॉलेस्ट फिगर ऑफ द कृष्णा on which trees again of the same size are painted in a stylized form. देखते जाइए, उनके पीछे एक लाइन जा रही है. जो सबसे टॉल कौन है, कृष्णा जी हैं, जिसके ऊपर क्या बनाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज विथ स्टाइलाइज और सेम साइज. It seems that the artist wanted to stretch the plain ground
to give emphasis to his colorful figures, so he pushed the horizon further up. जो भी इन्होंने बनाया वो ऊपरी तरफ और नीचे की तरफ इतना स्ट्रेच किया हुआ है, उनको इतना क्लियरली नहीं शो करने की कोशिश की जितना उन्होंने इन 9 फिगर्स को शो करने की कोशिश की है. It seems that the artist wanted to stretch. Okay. हाँ, stylization has been done for the ornament purpose. Beauty of nature complements the devotion of gopis. The vibrant orange background lends an extraordinary luminosity to this painting. ऐसे तो कोई ऑरेंज ग्राउंड होता नहीं है, बट इसमें ऑरेंज यूज़ किया गया है और ये पेंटिंग को बड़ा ही वाइब्रेंट रूप दे रहा है, कलरफुल, इंटरेस्टिंग बना रहा है. इसको देखने का मन कर रहा बार बार, क्योंकि आई कैचिंग बनाने की कोशिश की है. The sentiment of love and devotion as an inspiration and the central theme is beautifully executed in this Pahadi painting. Okay students, that's all. ये इसका डिस्क्रिप्शन था जो कि कम्प्लीटली पेंटिंग के साथ रिलेट कर रहा है. सब्जेक्ट मैटर भी आपने पढ़ा. ये गीत गोविंद सीरीज से लिया गया है जो कि जयदेवा जी ने लिखा है. ओके, इसमें गॉड और उनके जो डिवोटीज़ हैं, राधा और गोपीज़, उनके बारे में बनाया गया है. तो पीछे कुछ नेचर दिखाया है, हल्का सा यमुना रिवर दिखाया है. तो कम्प्लीटली ये फिगर्स विथ नेचर है. ओके, आपको अगर कोई डाउट फील हो इसमें, यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. Please go through this topic thoroughly, read it, that will help you. Thank you so much.